پاکستان ہمیشہ زندہ باد، قوم کو فتح مبارک۔ پاک فوج کے دندان شکن جواب کے بعد بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ مڑکے مارنے والا بھارت مذاکرات کی میز پر آ گیا، پاکستان کے ساتھ جنگ بندی کر لی۔ امریکہ کی ثالثی میں دونوں ملک جنگ بندی پر رضامند ہوئے۔ امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر سیز فائر کا اعلان کیا، مبارکباد دیتے ہوئے کہا سیز فائر کا اعلان کرتے خوشی ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا۔ پاکستان اور بھارت نے 4:30 بجے سے جنگ بند ہونے کا اعلان کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا فریقین نے فوری جنگ بندی پر اتفاق کیا۔ پاکستان نے ہمیشہ خطے میں امن اور سلامتی کے لیے کوشش کی۔ پاکستان اپنی خود مختاری پر کبھی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ بھارت کے سیکرٹری خارجہ نے بھی ٹی وی پر آ کر بتا دیا کہ دونوں طرف سے کوئی فوجی کارروائی نہ کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ 12 مئی کو ڈی جی ایم اوز کی ملاقات ہوگی۔ غیور اور باوقار پاکستان کو مبارکباد۔ پاکستان کے مسلح افواج نے 1-1.5 گھنٹے میں بھارتی عسکری اڈوں کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ جھپٹنا، پلٹنا اور پلٹ کر جھپٹنا ہمارے جوانوں نے ثابت کیا۔ دشمن کے رافیل ہمارے شاہینوں کے نشانے پر آئے تو فیل ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب، کہا بھارت نے جو کچھ کیا وہ بزدلانہ اور شرمناک فیل تھا۔ پہلگام واقعے کو بہانہ بنا کر بھارت نے ہم پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ فیصلہ کیا دشمن کو اسی زبان میں جواب دیں گے جو وہ واضح سمجھتا ہے۔ فیصلہ کیا جو بات میز پر ہونی تھی وہ اب میدان جنگ میں ہوگی۔ ہم نے دشمن کے ساتھ وہی کیا جو ایک باوقار قوم کو زیب دیتا ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ جنگ بندی کے لیے مخلصانہ کردار ادا کرنے پر امریکی صدر کے شکر گزار ہیں۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، ترکیہ اور چین سمیت دوست ملکوں اور قائدین کا شکریہ۔ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پاکستان اقوام عالم میں کھویا ہوا مقام حاصل نہ کرے۔ فوجی قیادت ہر جرری جوان اور افسر کو خراج تحسین اور سلام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد، آرمی چیف جنرل عاصم منیر، ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر، نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف کو سلام پیش کرتا ہوں۔ جنرل عاصم منیر کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ عظیم مارکہ سر ہوا۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور ان کے شاہینوں کو گرم جوشی سے شاباش۔ شہید ارتضیٰ عباس ایسا پھول تھا جو کھلنے سے پہلے ہی مرجھا گیا، ایسے ہی ہر شہید کی ماں کے صبر کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ تمام اتحادی اور اپوزیشن جماعتوں سے ملک بھر کی سیاسی قیادت اور پارلیمان کا شکریہ۔ میڈیا اور سوشل میڈیا نے اپنا محاذ ذمہ داری سے سنبھالا، سب کو خراج تحسین۔ آپریشن بنیان مرسوس نے بھارت کا غروق خاک میں ملا دیا۔ پاکستان کے حملے میں آدم پور، بھٹنڈا، سورت گڑھ، پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ، مامون، ہلوارہ، جموں، برنالہ اور ادھم پور ایئر بیسز تباہ۔ پاک فضائیہ نے آدم پور میں بھارت کے جدید ترین ایئر ڈیفنس سسٹم S-400 کو GF-17 تھنڈر طیاروں نے ہائپر سونک میزائلوں سے تباہ کر دیا۔ ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت $1.5 ارب ہے۔ پاکستان نے فتح گائیڈڈ میزائل سسٹم استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ کر دیا۔ اڑی میں سپلائی ڈپو اور نگروٹا میں برہموس سٹوریج سائٹ تباہ کر دی گئی۔ دہر نگیاری میں آرٹلی گن پوزیشن کو ملیا میٹ کر دیا گیا۔ راجوڑی میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز بھی صفائے ہستی سے مٹا دیا گیا۔ مقبوضہ کشمیر نوشہرہ میں پاکستان میں دہشت گردی کرانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز اور منکوٹ میں بھارتی فوج کی آرٹلری گن پوزیشن تباہ۔ پاکستان نے بھارت کی اخنور ایوی ایشن بیس کو بھی تباہ کر دیا۔ بھارت نے اپنے 32 ایئرپورٹس کو بند کر دیا۔ بھارتی S-400 سسٹم کو بھسم کرنے والے GF-17 10 تھنڈر کی تاریخی اڑان پاکستان کے لیے انتہائی قابل فخر اور تاریخ ساز مناظر۔ ہائپر سونک میزائل سے بھارتی S-400 سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اڑان بھرنے والے GF-17 10 تھنڈر کی خصوصی ویڈیو افواج پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملا دیا۔ پاکستان نے بھارت کا جدید سسٹم تباہ کر کے نام نہاد بھارتی دفاعی نظام اور کھوکھلے دعووں کو زمیں بوس کر دیا۔ راجوڑی میں افواج پاکستان کی جوابی کارروائی میں دہشت گردوں کا سہولت کا راج کمار تھاپا مارا گیا۔ حکومتی اعلیٰ عہدے کی 8ویں ایڈیشنل ڈی سی راج کمار کا دہشت گردوں کے ساتھ گٹھ جوڑ تھا۔ راج کمار تھاپا کشمیری مسلمانوں کے لیے دہشت کی علامت تھا، اعلیٰ فوجی بریفنگز میں ہوتا۔ ہمارے پھول سے بچے شجاعت کے نشاں ٹھہرے۔ پاکستان کی فتح ان ننھے پھولوں کے نام
जिन्होंने भारतीय जारहियत में अपना लहू पेश करके गुलशन की आबियारी की। पाक फौज ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस में भारत पर फतह मिसाइल फेंका तो उस पर भारतीय जारहियत में शहीद होने वाले बच्चों के नाम लिखे थे। सदर मुमलिकत के आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल और नेवल चीफ समेत अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद। आसिफ जरदारी ने कहा, आज हमारी कौम का आज़म बेमिसाल है। हमने भारत की नाम निहाद फौजी कुव्वत को सख्त ठेस पहुंचाई है। सदर मुमलिकत से वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज की बहादुरी को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मौलाना फजल रहमान, हाफिज नईमुर रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, एमएल वली खान और दीगर सियासी कायदीन से राब्ता किया। अहम मौके पर हुकूमत को सपोर्ट करने पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ मुल्कों का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस ने कहा, उम्मीद है ये मुआहिदा देर पा क़याम अमन में मुआविन साबित होगा। बरतानवी वज़ीर आज़म केयर स्टारमर ने कहा, जंगबंदी देर पा होनी चाहिए। पाकिस्तान भारत जंगबंदी के लिए बरतानिया बातचीत में शामिल रहा। वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी परिकैन से राब्ते में रहे। चीनी वज़ीर ख़ारजा का नायब वज़ीर आज़म सागदार का राब्ता। वांगजी ने कहा, चीन हर हाल में पाकिस्तान के साथ खड़ा है। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, उम्मीद है मुआहिदा ख़ित्ते में अमन व अमान की बहाली का बाइस बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा का भी सागदार को टेलीफोन सीज़ फायर का खैर मकदम किया। जर्मन वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा कि शिरकी के खात्मे के लिए बातचीत कलीदी हैसियत रखती है। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का सागदार को टेलीफोन पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम किया। अमरीकी नायब सदर दोनों मुल्कों की आला क़यादत से राब्ते में रहे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, दोनों मुल्कों ने न्यूट्रल मुकाम पर बातचीत के लिए आमादगी का इजहार किया। दोनों जानिब से अमन का इंतखाब काबिल तारीफ है। पाकिस्तान के हाथों पिटाई, दुनिया में रुसवाई। भारत की दरख्वास्त पर अमेरिका ने जंगबंदी कराई। पंजाब से गुजरात तक हजीमत उठाई तो होश ठिकाने आए। बॉलीवुड से निकलकर हकीकत में आए। अलग ऐलान कहा कि तनाव नहीं चाहते। अमेरिका से दरख्वास्तें भी करते रहे। एक ही मार में भारत आंखें दिखाने से गुड़गुड़ाने तक आ गया। अमरीकी सहाफी निक रॉबर्ट्स ने बताया कि पाकिस्तान के मिसाइल हमलों ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। भारत मुज़ाकरात की मेज पर आने पर मजबूर हुआ। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसिस पर हमले किए। भारतीय हमले के बाद पाकिस्तान ने मिसाइलों की ना रुकने वाली बारिश कर दी। अमेरिका की जानिब से दरख्वास्त पर पाकिस्तान भारत से सीज़ फायर पर रजामंद हुआ। बरतानवी सहाफी एम्बर्सन एथरजॉन ने कहा कि भारत ने न्यूक्लियर असासों के बावजूद पाकिस्तान के अंदर हमला किया। भारत को तस्लीम करना होगा कि पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत से ज्यादा है। भारत का पाकिस्तान को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाने का मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाकिस्तान का भारतीय जारहियत को मुंह तोड़ जवाब। ऑपरेशन का नाम बुनियानुम मरसूस रखा गया। फजर के वक्त शुरू होने वाले ऑपरेशन का नाम कुरान पाक की सूरह सफ से लिया गया। सूरह सफ की आयत नंबर 4 में अल्लाह फरमाता है, बेशक अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो इसकी राह में सफ बांध कर लड़ते हैं, गोया वो सीसा पिलाई हुई दीवार है। सूरह सफ की आगे चलकर आयत नंबर 13 का तर्जुमा है, और दूसरी बात जो तुम पसंद करते हो अल्लाह की तरफ से मदद है और जल्द मिलने वाली फतह और ईमान वालों को खुशखबरी देते हैं। बिलावल भुट्टो का अवाम और अफवाज पाकिस्तान को सलाम। कहा, ऑपरेशन शुरू हुए 24 घंटे भी नहीं हुए और भारत आपका मौकफ मान गया, सीज फायर हो गया। ARY न्यूज से गुफ्तगू में कहा, पाक फजाया का नाम सुनहरे हरफों में तारीख में लिखा जाएगा। जिस राफेल को दुनिया में कोई ना गिरा सका उसे पाक फजाया के काबिल पायलट्स ने गिराया। रात के अंधेरे में बुज़दिलाना हमलों के जवाब में किया गया ऑपरेशन जवाब है जिसका वादा किया गया था। जब पाकिस्तान हमला करेगा तो गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। अमरीका भारतीय दबाव में नहीं आया और सीज फायर का रास्ता अपनाया। ये सबूत भी है कि पाकिस्तान का ताल्लुक किसी भी दहशतगर्दी के वाक़े से नहीं। सेनेटर फैसल वावडा ने कहा, पाकिस्तान, पाक फौज, अवाम और आर्मी चीफ की फतह। कहा था कि काबिल आर्मी चीफ हैं, जिसका सबूत आज सामने आ चुका है।
पाक फजाइया ने भारत के तकब्बुर को खाक में मिला दिया। भारतीय मीडिया को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाकिस्तानी मीडिया को सलाम पेश करता हूं। पाकिस्तान का भारत के खिलाफ ऑपरेशन बुनियाद मरसूस। पाकिस्तान के साइबर हमले में बेशतर भारतीय वेबसाइट्स को हैक कर लिया गया। मिलिट्री सैटेलाइट जाम करके नाकारा बना दिया गया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डाटा लीक कर दिया गया। बिजली की तनसीबात पर साइबर हमले में भारत के 70% ग्रिड्स को नाकारा बनाया गया। महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन कंपनी का सिस्टम भी हैक कर लिया गया। बिजली बंद हो गई। भारतीय वजीर आजम और बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट समेत मुतअद्दिद अहम वेबसाइट्स हैक। वेबसाइट्स का मवाद उड़ा दिया गया। इंडियन एयरफोर्स, महाराष्ट्र इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट्स भी हैक की गई। साइबर टीम के जम्मू कश्मीर में भारतीय एयरफोर्स की नॉर्थ एयर कमांड पर साइबर हमले। भारतीय फिजाई का साइबर नेटवर्क मुसलसल डाउन। इंडियन डिफेंस प्रोडक्शन वेबसाइट्स का हसास डाटा डार्क वेब पर फॉर सेल कर दिया गया। पाकिस्तान साइबर फोर्स के हमले में कर्नाटक में 235 पावर स्टेशन गैरफार। नून के सदर और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद भारत के घुटने टेकने पर वजीर आजम, आर्मी चीफ, एयर चीफ मार्शल को शाबाश। नवाज शरीफ ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र है उसने पाकिस्तान को सरबलंदी अता की। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और अमन को तरजीह देता है, लेकिन पाकिस्तान अपना दफा करना भी जानता है। पाक भारत जंगबंदी के ऐलान के बाद पीएसएल की इंतजामिया फिर एक्शन में आ गई। जराये ने बताया, पाकिस्तान सुपर लीग के चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर ने फ्रेंचाइजी से राब्ता किया है। खिलाड़ियों के मकामात पता करने की दरख्वास्त कर दी है। मेगा इवेंट के बाकी मैचों का नया शेड्यूल अब तक जारी नहीं किया गया। टीमों से रिपोर्ट मिलने के बाद शेड्यूल पर हतमी फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के बाकी 8 मैच गुज़िश्ता रोज गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी किए गए थे। जंगबंदी के बाद पाकिस्तान में फजाई हुदूद की बंदिश खत्म। फजाई ऑपरेशन बहाल होना शुरू। कोयटा में लैंड करने वाली पेरिस की परवाज की इस्लामाबाद उड़ान रात 10 तक पीआईए का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बहाल हो जाएगा। पीआईए की तमाम रुकी हुई या ताखीर का शिकार परवाजें ऑपरेट होंगी। वापस जाने वाले मुसाफिरों को बुलाया जा रहा है। जहाजों और दीगर साजो सामान की ऑपरेशन एरिया में वापसी। भारत को सबक सिखाने पर पाकिस्तान में जश्न, अवाम नारे लगाते हुए सड़कों पर निकल आए। एक दूसरे को मिठाई खिलाई। लाहौर और सियालकोट में शहरियों ने फौजी जवानों को फूलों से लाद दिया। इस्लामाबाद की फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। मरी में शानदार आतिशबाजी, डस्का में ढोल की थाप पर भंगड़े। कराची में नून लीग की पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। वकीलों और अकलियती बरादरी का भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। बहावलनगर, मुल्तान, साहिवाल समेत नगर नगर रैलियां। जिला मोहम्मद में अवाम का जबरदस्त जोश खरोश। पाक फौज से इजहार यकजहती, हवाई फायरिंग। फतह अजीम पर बलूचिस्तान में भी रैलियां। चमन के कबायली अवाम का ढोल की थाप पर रक्स। ओस्ता मोहम्मद में भी अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती। रावलपिंडी में दिफाए पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खिताब में कहा, आज से हमें आर्मी चीफ को एक फातेह सिपह सालार का नाम देना है। भारत और मोदी ने शैतानी प्रोग्राम को तरतीब देकर नाम सिंदूर रखा। हमारे सिपह सालार ने मुल्क पर किए गए हमलों का जवाब ऐन कुरान और सुन्नत के मुताबिक दिया। पाकिस्तान की तारीखी कामयाबी पर गवर्नर ने ईदगाह शरीफ में मिठाई तकसीम की। वफाकी वज़ीर हनीफ अब्बासी भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में मुल्क भर से सियासी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। मुल्क की सलामती और अफवाज पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं। नारे तकबीर से कौमी तराने तक, भारतीय जारहियत से दुश्मन का गुरूर खाक में मिलाने तक ARY न्यूज ने रखा कौम को हर लम्हा बाखबर। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस का ऐलान, फतह मिसाइल की लॉन्च, पाकिस्तानी शाहीनों की उड़ान। ARY न्यूज की स्क्रीन पर नाजरीन ने सबसे पहले देखा। खुसूसी ट्रांसमिशन के जरिए हर मिनट की खबर पहुंचाई। सरहदों पर पाक अफवाज ने दुश्मन के दान खट्टे किए। बयानी की जंग में भी ARY न्यूज ने दुश्मन का प्रोपेगेंडा तहस नहस किया। भारतीय फौज के बुज़दिलाना हमले में शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नुकसान। भारत ने पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात की दोस्ती की अलामत को निशाना बनाया।
शेख ज़ैद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 1993 में तामीर किया गया था। एयरपोर्ट का नाम शेख ज़ैद बिन सुल्तान अल नहयान के नाम पर रखा गया था। भारत ने गुज़श्ता रोज ननकाना साहिब को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी। भारत सिखों को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन सिख अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतमन सिंह पन्नू की RY न्यूज से गुफ्तगू। कहा, भारत की फौज में सिख फौजी बगावत कर चुके। भारत ने 6 बैलिस्टिक मिसाइल सिखों की आबादी पर फायर किए। भारत ने लाखों सिखों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया है। नौजवान समझें कि मोदी उनकी नस्ल कुशी कर रहा है। भारत ने ननकाना साहब में ड्रोन हमले की कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने ननकाना साहब को ड्रोन हमलों से बचाया। भारतीय मीडिया का गुरु घंटाल रो पड़ा। भारतीय एंकर अर्नब गोस्वामी ने चीख कर आसमान सर पर उठा लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत में जंगबंदी क्यों कराई? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को निशाने पर रख लिया। कहा, ट्रंप जमीनी हकायक नहीं जानते। पाकिस्तान ने अंदर घुसकर हमारे 36 मकामात को निशाना बनाया, लेकिन ट्रंप ने ऐलान कर दिया कि दोनों मुल्कों में जंगबंदी हो गई। अर्नब गोस्वामी डोनाल्ड ट्रंप को बैकडोर डिप्लोमेसी पर भाषण भी देते हैं। कहा, भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया, बेगुनाहों के खून का बदला ले लिया। वजीर आजम का कौम को एतमाद में लेने का फैसला। आज शाम कौम से खिताब करेंगे। वजीर आजम ने नेशनल कमांड अथॉरिटी का इजलास भी तलब कर लिया। और ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस में भारत ने पाकिस्तान के आगे घुटने टेक दिए। दुनिया में पाकिस्तानियों का सर बुलंद करने पर आए, पाक फौज को खिराजे तहसीन पेश करें। अजीम फतह पर कौम का पाक फौज को सलाम। अभी फोन उठाएं और अपने एहसासात और जज्बात का इजहार करें। पाक अफवाज का शुक्रिया अदा करें। अपने अल्फाज में पैगाम भेजें इस नंबर पर।